Hey guys, welcome back. Listen, whether you are a student in Mumbai, a young pro in Bangalore, or an NRI chilling in Canada or the US, you need to see this. Today, we are decoding the Union Budget 2026 to 27. I know, budget sounds boring, like old uncles talking about taxes. But trust me, this graphic right here, this is a treasure map. It literally tells you where the money is flowing in India for the next few years. Imagine you are playing a video game, and someone gives you the cheat codes. This is that cheat code. Let's break it down, simple style, even a 10-year-old will get this. 1. The mission, Kartavya. First off, looking at the top left, the government has 3 Kartavyas, that means duties. Number 1, faster engine. They want to speed up the economy. Number 2, big dreams. They want India to control 10% of the entire world service market by 2047. That's huge. Number 3, Sabka Saath, Sabka Vikas. This means nobody gets left behind. We grow together. Though the paisa, money talk. Look at the top right. The government is spending 53.5 lakh rupees crore. That is a number with so many zeros I can't even count them. But here is the secret sauce. Look at capital expenditure, 12.2 lakh rupees crore. हिंदी ट्रांसलेशन, दोस्तों, इसका मतलब है कि सरकार फ्रीबीज पे नहीं, बल्कि देश को बनाने में खर्चा कर रही है. Roads, bridges, factories, assets that make us rich later. This is smart spending. 3. Where is the boom? Top sectors. Okay, if you want to invest your pocket money or your first salary, look at the middle of the chart. These are the top 5 sectors. Infrastructure, building India. Bridges, highways, ports. This is growing the fastest, up to 29%. Electronics, your phones, laptops, chips. India wants to make them all here. Healthcare, pharma, because health is wealth, literally. It AI, because obviously, robots are the future. 4. What should you buy? The shopping list. Now, look at the bottom. They have given us actual names. If you believe in infrastructure, look at companies like LT or Adani Ports. If you trust Indian banks, look at HDFC or SBI. For the NRIs, if you want to bet on India's tech talent, TCS and Infosys are right there. Mutual funds. If you are scared to pick one company, which is smart, don't put all eggs in one basket. Look at the right side. Funds like SBI PNSU Fund or ICICI Infrastructure have given nearly 30% returns in the last 5 years. Simple math. If you put 100 rupees there, it became 130 rupees very quickly. That beats your savings account any day. 5. The perfect pizza, portfolio allocation. Finally, look at the pie chart at the bottom. It tells you how to balance your plate. Don't put all your money in one place. Put 20% in infrastructure, the builders. Put 15% in banking, the money managers. Put 12% in IT, the techies. And spread the rest. Conclusion. So, the summary is this. India is building massive assets. The debt is going down, spending is going up, and sectors like infrastructure and electronics are on fire. हिंदी, तो भाई लोग, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है, तो यही टाइम है. Invest wisely, do your own research, but don't ignore these numbers. India is on the move. Disclaimer, I am not a financial advisor. This chart is for education. Consult a pro before investing real money. Peace out. Jai Hind. हिंदी एक्सप्लेनेशन. आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026 टू 27 के बारे में. इस फोटो को ध्यान से देखिए. ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है. ये इंडिया के फ्यूचर का रोड मैप है. अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब शुरू कर रहे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है. चलिए, एक 10 साल के बच्चे की तरह आईएसी समझते हैं. 1. 3 कर्तव्य, 3 ड्यूटीज. सरकार ने अपने लिए 3 मेन काम चुने हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ, देश की रफ्तार बढ़नी है. एस्पिरेशंस, लोगों के सपने पूरे करने हैं.
टारगेट ये है कि 2047 तक दुनिया की 10% सर्विसेज इंडिया से आनी चाहिए। सबका विकास, अमीर हो या गरीब, सबका फायदा होना चाहिए। 2 पैसे का हिसाब, बजट नंबर्स। राइट साइड में देखिए। टोटल खर्चा, सरकार 53.5 लाख रुपीस करोड़ खर्च करेगी। केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें से 12.2 लाख रुपीस करोड़ सिर्फ चीजें बनाने में लगेंगे, जैसे नए हाईवे, एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस। ये देश के लिए गुड इन्वेस्टमेंट है। कर्जा, डेट, खुशी की बात यह है कि देश का कर्जा, डेट टू जीडीपी, कम हो रहा है। ये एक हेल्दी साइन है। 3, कहाँ बनेगा पैसा? टॉप 5 सेक्टर्स। चार्ट के बीच में देखिए, ये 5 एरियाज सबसे तेजी से बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और पुल बनाना, सबसे तेज ग्रोथ यहां है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में फैक्ट्री लगाना, मेक इन इंडिया। हेल्थ केयर, दवाइयां और हॉस्पिटल। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल और गैजेट्स बनाना। आईटी टेक, कंप्यूटर और एआई। 4, कहाँ इन्वेस्ट करें? स्टॉक्स, फंड्स। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एलटी, एनटीपीसी। बैंकिंग के लिए एसबीआई, एचडीएफसी बैंक। टेक्नोलॉजी के लिए टीसीएस, इन्फोसिस। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स, राइट साइड में देखें। आईसीआईसीआई प्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एसबीआई पीएसयू फंड ने पिछले 5 साल में 29% से ज्यादा मुनाफा दिया है। 5, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? पाई चार्ट। अपने पैसे को डिवाइड कैसे करें? नीचे वाला गोला, पाई चार्ट, देखें। सबसे ज्यादा पैसा 20% इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए। एफआईआर 15% बैंक्स में और 15% मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी पैसा टेक और हेल्थ केयर में बांध दे। आपने वो देखा है जब किसी का घर रिनोवेट होता है, पुराने फर्नीचर निकाल दिए जाते हैं, नई फ्लोरिंग लगती है, पेंटिंग होती है, थोड़ी धूल मिट्टी होती है, पर उसके बाद घर की वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। बस समझ लो इंडिया के साथ अभी वही हो रहा है। मेन इस कंस्ट्रक्शन मोड को 3 पॉइंट्स में समझती हूँ, ध्यान से सुनना। 1, शॉपिंग नहीं, एसेट बना रहे हैं हम। देखो, हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कपड़े या खाने पे पैसे उड़ते हैं, राइट? वो होता है खर्चा। पर जब हम गोल्ड, सोना लेते हैं या घर खरीदते हैं, वो होती है इन्वेस्टमेंट। सरकार इस बजट में जो 12.2 लाख रुपीस करोड़ लगा रही है, वो इंडिया के लिए गोल्ड खरीदने जैसा है। हम रोड्स, ब्रिजेस और फैक्ट्रीज बना रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो अगले 50 साल तक हमें पैसे कमा के देंगी। 2, मैजिक सर्किल, सब कुछ जुदा हुआ है। मैंने इस चार्ट में एक पैटर्न नोटिस किया है। पहले सरकार रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब रोड्स अच्छी होंगी तो कंपनीज आएंगी और फैक्ट्रीज लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग। फैक्ट्रीज को चलाने के लिए पैसे चाहिए तो बैंक्स उन्हें लोन देंगे, बैंकिंग बूम करेगा। और इन सबको मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर लगेंगे, आईटी टेक। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आप इस पूरे सर्कल का फायदा उठा सकते हो। 3, काश मैंने तब कर लिया होता। हमें अक्सर रिग्रेट होता है, ना कि काश बिटकॉइन टैब ले लिया होता या काश वो प्लॉट टैब ले लिया होता। मैं आपको बता रही हूं, ये वही टाइम है। इंडिया का कर्जा, डेट, कम हो रहा है और ग्रोथ ऊपर जा रही है। दुनिया भर के लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी कि डोंट मिस आउट, एफओएमओ मैट होन देना। चाहे थोड़ा सा ही सही, पर इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनो। अपनी पॉकेट मनी या सैलरी का एक छोटा हिस्सा आज सही जगह लगा डोज, तो फ्यूचर में खुद को थैंक यू बोलोगे। शॉर्ट में बोलूं तो इंडिया अभी अपने मेकओवर फेज में है। ये बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का, क्योंकि जब मेकओवर पूरा हो जाएगा तब तक चीजें बहुत महंगी हो चुकी होंगी। एक छोटी सी एडवाइस दीदी की तरफ से, पैसा लगाने से पहले प्लीज अपने पापा या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, मार्केट में रिस्क होता है। ओके, जय हिंद।